السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عبداللہ چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو سیریز شروع کی تھی کہ میرا ایمان، توکل اور ظالموں کے خلاف میری مدد، اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ۔ میرے رحمت روڈ والے ہسپتال کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی جو ہم کرائے پہ دیتے تھے۔ اس کرائے سے ہسپتال کے کافی اخراجات ہمارے پورے ہو جاتے تھے، مسجد کے اور اس کے ہسپتال کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ وہ نارملی میں بلڈنگ جو تھی وہ اسکول کو دیتا تھا، اسکول والوں کو کرائے پہ۔ تو ایک بہت اچھا اسکول وہاں پہ رہا 10 سال۔ انہوں نے بہت ہی اچھی طرح مجھے کرایہ بھی دینا، ہر طرح سے تعاون۔ اچھا، جب وہ اسکول انہوں نے اپنا بنانے لگے قریب ہی، تو میں نے پھر سوچا کہ کسی اور کو دیں کرائے پہ۔ تو ابھی میں کسی اسکول اسکال والوں کا ہی سوچ رہا تھا، تو ایک شخص آئے پراپرٹی والے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ڈاکٹر صاحب میں پراپرٹی کرتا ہوں لاہور میں، پراپرٹی کا بزنس کرائے وغیرہ پہ۔ تو میرے پاس ایک پارٹی ہے، بہت بڑی ہے، بہت ساؤنڈ پارٹی ہے، بڑے تگڑے لوگ ہیں، ان کا گلبرگ میں آفس ہے، ان کے بڑے پروجیکٹس پنجاب میں چلتے ہیں۔ ان کے جو مالک ہیں وہ آپ کی طرح ڈاکٹر ہیں لیکن بزنس میں آ گئے ہیں، تو بڑے بڑے یونٹس، بلڈنگس، ادارے بناتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی ٹھیکے لیتے ہیں۔ تو ان کو آپ کی یہ بلڈنگ جو ہے یہ کرائے پہ چاہیے، کیونکہ آپ کی بلڈنگ میں نے دیکھا ہے اس میں دفتر بھی بن سکتا ہے، رہائشیں بھی بن سکتی ہیں، آفیسز بھی بن سکتے ہیں، کچھ اور چیزیں بن سکتی ہیں، لیبارٹری شبارٹری، وہ ان کے لیے بڑی سوٹیبل ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کے قریب ہی یہاں سے کوئی 5-6 میل دور ایک بہت بڑا حکومت سے پروجیکٹ لیا ہے بلڈ کرنے کے لیے۔ میں نے اس کو صاف جواب دے دیا کہ بھائی یہ ہم ہسپتال، یہ ہم جو بلڈنگ کرائے پہ دیتے ہیں یہ اسکول اسکال کے لیے ہوتی ہے، تاکہ تعلیم، میں چاہتا ہوں کہ میں چونکہ وہ تعلیم پہ نہیں، تعلیمی ادارہ نہیں چلا رہا، تو اس طرح یہ تعلیمی ادارہ جو ہے یہ یہاں سے مطلب چلتا میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے اتنے پیسوں سے۔ اچھا، اس نے مجھے پیسوں کی بہت بڑی آفر کر دی، میں نے پھر بھی میں نے کہ نہیں یار، مجھے پیسوں سے دلچسپی نہیں۔ وہ بندہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس ڈاکٹر نے مجھ سے رابطہ کیا ٹیلی فون پہ۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، سر میرا نام ڈاکٹر فلانا ہے، رضوان اس کا نام تھا، تو میں آپ کی طرح آپ کا ایک کولیگ ہوں، لیکن میں ذرا کنسٹرکشن میں آ گیا ہوں، تو یہ وہ پروجیکٹس لیتا ہوں الحمدللہ، تو میرا گلبرگ میں آفس ہے، آپ کو بھی تشریف لائیں نا۔ تو گپ شپ ہو گئی۔ اچھا، ایسے ہی میں نے کہا چلو کولیگ ہے، چلا جاتا ہوں۔ وہ جو پلازا ہے، شاید اس کو سینٹر پوائنٹ کہتے ہیں، جس میں وہ ٹیلی فون، سیل فون اور اس کمپیوٹر کی دکان ہے، اس کے بالکل پچھلی بیگ پہ گلی پہ اس وقت شخص کا دفتر تھا۔ میں چلا گیا، اس نے بڑی آؤ پکڑ کی، تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ڈیلر کو آپ کے پاس بھیجا تھا، تو مجھے آپ کی بلڈنگ چاہیے تھی، تو زیادہ دیر نہیں چاہیے، تو سال کے لیے دے دیں، کیونکہ سال کے بعد وہ پروجیکٹ ہم نے ختم کر دینا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو پھر ہم آپ کی بلڈنگ جو ہے وہ واپس کرائے پہ، جو کرایہ نکل جائیں گے، تو آپ کی بلڈنگ آپ کو واپس مل جائے گی۔ اچھا، وہ میں نے سوچ کے میں نے کہا چلو، بیسیکلی میں نے اس کا جو سوچا وہ یہی سوچا کہ یہ کولیگ ہے، یہ میرا مطلب ڈاکٹر ہے، تو میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب چلیں ٹھیک ہے دے۔ تو مجھے اس نے آفر کی، میں نے کہا نہیں مجھے اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مناسب ہی میں نے کرایہ لیا، تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے آپ کا کام چلتا ہے تو آپ چلا لیں۔ اچھا، اس نے اس بلڈنگ کو ٹیک اوور کر لیا، کرایہ نامہ لکھا گیا۔ اچھا، آپ دوست بھی جانتے ہو کہ جب کرایہ نامہ لکھا جاتا ہے تو وہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے لیز کا، تو پھر اس کا طریقہ ہے یا تو وہ لیز کو رینیو بندہ کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ ویری کلیئر۔
अच्छा, उन्होंने सारा प्रेमिसेस जो था वो टेक ओवर कर लिया, उसमें रिहाइशें भी बनाई अपने मुलाजमों की, क्लर्कों की, दफ्तर भी बनाए, लेबॉर्ट्री, बड़ा बड़ा सेटअप बनाया क्योंकि काफ़ी बड़ा कम्प्लेक्स था, कोई वो 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा ठीक, मैं जिस तरह मेरा रूटीन होता था, मैं अमेरिका वापस आ गया। तो मुझे यही होता था कि किराया मिल रहा है, तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा किराया, कहता हाँ सर वक्त पे किराया दे देते हैं। मैंने कहा ठीक, पार्टी भी बड़ी साउंड सी थी, तो मैंने कहा भी ठीक है। अच्छा, अब लीज ख़त्म होने का टाइम आ गया, जो 1 साल की उसने की थी। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि यार वो लीज ख़त्म होने में महीना दो महीने रह गए हैं, तो उन्होंने तुमसे रब्ता किया है कि अब क्या करना है, खाली करना है या एक्सटेंड करना है? तो कहता सर नहीं, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। तो आराम से बैठे। अच्छा, फिर महीना और गुजर गया, महीना रह गया। तो मैंने कहा हाँ कोई बात हुई उनसे? वो कहता नहीं सर वो बात नहीं कर रहे, मैंने उनके जो मैनेजर हैं वहाँ पे लोकेशन के जो इंचार्ज हैं, मैंने उनसे कहा है कि जी वो डॉक्टर साहब भी पूछ रहे हैं अमेरिका से आपने क्या करना है, अब टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। तो वो मैनेजर भी कोई मुझे ख़ास पकड़ नहीं दे रहा। तो अब मुझे कन्फ्यूजन शुरू हो गई नेचुरली। नॉर्मली ये होता है कि महीना पहले ही बंदा बता देता है, ये चंद दिन पहले ये, और उनकी तरफ से खामोशी। अच्छा, अब मेरे जाने का टाइम हो गया पाकिस्तान, लाहौर। अब मैं पहुंच गया वहाँ अपने प्रेमिसेस में। तो मैंने उनके मैनेजर जो भी इंचार्ज था, मैंने कहा यार तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो, अपने बात से बात करो या खाली करो अगर तुमने कुछ और नहीं करना तो। वो मुझे कहता है सर मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अब उसको टेलीफोन कर रहा हूँ उस शख्स को, जो डॉक्टर रिजवान साहब जिन्होंने प्यार से मेरे से बातें की। अब वो बंदा नहीं मिल रहा मुझे, ना फ़ोन पे मिल रहा है ना वैसे मिल रहा है। अब मैंने क्या किया कि इनकी तरफ से तो कुछ खामोशी है। अब अच्छा, एक पार्टी आ गई स्कूल की, उन्होंने कहा सर हम स्कूल लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो कुछ कह नहीं रहे। अब मैंने उसके इंचार्ज को वार्न किया कि अगर तुमने मुझे इतने दिनों में 10 दिनों में ना बताया तो फिर मैं अपना प्रेमिसेस वापस ले लूँगा। वो कहता सर जी वो हमारे जो बॉस हैं पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, आप फिक्र ना करें, ये वो हमने पहले कोई तकलीफ नहीं दी। तो खैर जब वो 10 दिन या जितने दिन मैंने उनको कहा था ख़त्म हुए, तो मैंने जो मेन रायवेंट रोड पे ब्लॉक था मैंने उसको खोलवा के उनका सामान और उनके बंदों को बाहर कर दिया और अपने मुलाजमों से कहा कि ताले लगा दो। कुछ हिलजुल होगी। अच्छा, अब अगला स्टेप था कि हम अंदर बिल्डिंगों में जो थे ब्लॉक्स थे उनको खाली कराते। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिक्योरिटी के कुछ अपने जो बड़े बड़े तगड़े ग्रुप बन जाते हैं कंस्ट्रक्शन के इस तरह के, इन्होंने अपने कुछ ऐसे सिक्योरिटी इंचार्ज रखे होते हैं जो कि कर्नल या ब्रिगेडियर और कोई जर्नैल भी होते हैं, जैसे ये जो बहरिया टाउन का डॉन है मलिक रियाज। इस तरह इनका मकसद क्या होता है कि जब ये फौजी रिटायर होते हैं, जब ये थाने कचहरी इधर उधर जाएंगे तो रोब पड़ेगा। अच्छा, वो आ गया, वो कर्नल था, रिटायर्ड कर्नल, इनका सिक्योरिटी लाहौर से आ गया। कहता डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ क्या किया, हमारा सामान निकाल दिया है, हमारे बंदे निकाल दिए। मैंने कहा इसलिए कि तुम लोग बता नहीं रहे कि क्या करना है, असूलन तुम बाउंड हो, मुझे बता देंगे लेकिन ये आपने काम गलत किया। तो मैं कहा मैंने तो करना था कर दिया, मैं आइंदा अंदर की बिल्डिंगें भी लूँगा, वो भी खाली करो, क्योंकि मैंने अब तुम लोगों को रिन्यू करना ही नहीं है, तुम्हारे लीज जो है वो किराया नामा करना ही नहीं, अब तुम लोग निकलो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। अच्छा, उन साहब ने क्या किया, उन्होंने थाने जाके मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी कि देखें जी हम किराए में हैं, ये हैं वो हैं, तो हमें सामान निकाल दिया। अच्छा, अब थानेदार के ऊपर रोब होता है जी, कर्नल साहब आए हैं, रिटायर्ड कर्नल साहब आए हैं, फिर मोटी पार्टी है, और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो मोटी पार्टी नहीं हूँ। तो मैं बड़ा हैरान कि ये उल्टा हमारे ऊपर ये कर रहे हैं।
परेशानी तो होती है ना कि पाकिस्तान में जो कानून है, जो सिस्टम है, आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। सारा रोब, सारा दबदबा बदमाशों का, बड़े बड़े रस्सागीरों का होता है। अच्छा, मैं इसी शद्दोमत में, इसी सोच में बैठा हुआ था तो हमारे MNA साहब आ गए। अब चूँकि मैं वहाँ पे फ्री हॉस्पिटल चलाता था, लोगों को खिदमत मिलती थी, लोगों को सर्विस मिलती थी, तो हर बंदा मेरी इज्जत करता था वहाँ का। MNA साहब आए तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कुछ परेशान लग रहे हैं, ये बड़े तेज़ लोग होते हैं MNA MP। पहले तो मैंने कहा इसको क्या बताऊँ, ये सियासतदान आदमी है, सियासतदान भी ऐसे होते हैं। फिर मैंने कहा चलो बता देता हूँ। मैंने अल्लाह के ऊपर भरोसा करके मैंने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा MNA साहब, जान लूँगा। मैंने कहा हाँ सर ये मसला है, ये ब्लॉक जो था हमने किराए पे दिया, ये ना निकलते हैं, ऊपर से बदमाशी दिखाते हैं, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी इन्होंने। कहते हैं कि हद है डॉक्टर साहब, असी मर गए हैं, तुझे सानू क्यों नहीं याद किया। मैं कहा जी चलो अब बाप को बता दिया है। कहते अच्छा, मुझसे पूछा सारा ना कि पार्टी वार्टी क्या है, कहाँ पे है, किस तरह है। कहना हुण तुसीं बेफिक्र हो। मैंने कहा अच्छा। एक दिन उनका 2-3 दिन बाद इनका फ़ोन आ गया, कहता है डॉक्टर साहब अज रात तुहाडे हस्पताल च ऑपरेशन होएगा, वो जिहड़ा किराए ते तुसीं दिता है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ऑपरेशन होएगा। मेरे कोई 50-100 बंदा बंदूकां नाल मसला उत्थे आएगा और उत्थे आके सब नूं चुक के बाहर सुट देगा ते तुसी कुछ नहीं करना। तुसी ज़रा इन्ने बजे मेरे को आ जाओ डेरे पे, इनके कई डेरे होते हैं। खैर मैंने कहा जी ठीक। मैंने वकीलों से बात की, वकील कहते हैं मेरे कि डॉक्टर साहब इस तो अच्छा प्रोग्राम कोई नहीं होना। जिड्डी तगड़ी पार्टी है ना, अगर असी अदालत गए तो तुरदा ही रहेगा केस, तुरदा ही रहेगा, बनना कुछ नहीं। क्यों? इन्होंने बड़े बड़े वकील भी रखे होंगे, जो इन्होंने ब्रिगेडियर कर्नल रखे होंगे ने सिक्योरिटी वास्ते, तो इन्होंने वकील भी लड़न लिए बड़े तगड़े तगड़े रखे होंगे, तो वो मसला तुरदा ही रहेगा, ये बैठे रहेंगे। अच्छा, अब मसला उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर साहब ने कि जी हमारा प्रोजेक्ट 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। वो 1 साल में हस्बे मामूल मुकम्मल ना हुआ जो पाकिस्तान में होता है। अब आधा भी नहीं हुआ था। अब वो बंदे का पुत्र बजाय इसके एक्सटेंड करवाता, उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तो ये मसला, तो वकीलों ने भी कहा कि सर कोई फिक्र नहीं, MNA है ना, MNA साहब ने तो कुछ नहीं होता, तो फिक्र इन्होंने अंडर ही सब कुछ होता, पुलिस भी फलान भी टमका। मैंने कहा ठीक। मैं शाम को जितने बजे डॉक्टर वो MNA साहब ने बोला 10 बजे मैं रात को वहाँ पहुँचा उनके डेरे पे। तो वहाँ एक ट्रक खड़ा था, तो कोई 70-80 बुरछे बंदूकों के साथ, डंडों के साथ वहाँ बैठे हुए थे। अब जब मैं पहुँचा तो फिर MNA साहब ने थानेदार को फ़ोन किया, तो उसको कहते हैं इंचार्ज होता है, उसको कहते हैं ओए हस्पताल के नाल जी जगह है ना जिथे फलाना फलाना, कहता जी, कहता मैं उत्थे अज ना एक्शन करन लगा है, तो वो डॉक्टर साहब दे अपना किराया नहीं दिंदे पे, तो उत्तों FIR तेन दर्ज करा दी है, तो मैं इनू एक्शन करान लगा, तो तू गायब हो जा। बिल्कुल इस तरह। उसका आगे से आवाज़ क्या आई है, ठीक है सर चौधरी साहब इस तरह करना, मैं निकल लगा, मैं जो अपनी हद तो बाहर निकल जावा ना, मैं तुहानू फोन करांगा तो तुसीं एक्शन कर दो। मैं इस कानून पे हैरान जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान। वो खैर हम बैठे गपशप कर रहे थे तो उसका फ़ोन आया, चौधरी साहब मैं हद तो निकल गया, करो जो करना। मुझे चौधरी साहब ने कहा कि आप अपनी कार पे इतनी दूर खड़े हो जाएं और जब ये सारे निकल जाएं तो फिर आप अंदर आ जाए प्रेमिसेस। मैंने कहा अच्छा। मैं निकल के कार को मैं साइड पे खड़ा किया अस्पताल के पास, और थोड़ी देर बाद ट्रक आया। उन्होंने कहा ओए गेट खोलो, फाटक खोलो, फाटक खोलो। फाटक खोला, कुछ अंदर से कुछ दीवारें फैलान के सारे दर 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 चलन लगी बंदूका। अच्छा, जो आया डांगा वाला ने उनको डांगे मारने शुरू कर दी। जो उनका कंप्यूटर, जो कोई चीज़, जो फ्रिज, जो TV उठा के उन्होंने सड़क पे फेंक दिया, फाटक के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। और बंदे
और वो हक्का बक्का, वो उनको तो बेचारों को पता भी नहीं था जब मुलाजमीन थे, उनको तो यही कहा गया होगा कि तुम आराम से बैठो। वो हक्का बक्का कि क्या हो गया, तो निकाल बाहर फेंका। तो फिर मुझे चौधरी साहब ने फ़ोन किया कि आप अंदर चले जाओ, और मैं अपने मुलाजमों के साथ अंदर चला गया और हमने अंदर से ताला लगा दिया जब निकल गया। अच्छा, एक गनमैन को अंदर रख लिया। वो चौधरी साहब की प्लानिंग थी कि जब पुलिस आएगी ड्रामा करने, वो मतलब ड्रामा का मतलब है कि वो मिट्टी झाड़न जिन्होंने कह लो पंजाबी, कोई एक दो सिपाही एक दो ASI होंगे, तो वो कहेंगे क्या हुआ तुम बताना कि ये इस तरह हो। तो वो खैर वाकई उसी तरह ही हुआ। वो पुलिस आ गई, ओ बुआ खोलो। मेरे मुलाजिम ने कहा क्यों, क्या गल है? असं पुलिस हाँ। उन्होंने कहा नहीं इतने बाहर गल करो, डॉक्टर साहब ने अंदर नहीं किया, नहीं दरवाज़ा नहीं खोलना। उतनी देर में वो गनमैन ने फायर कर दिए। अच्छा, पुलिस वाले जो होते हैं ना वो इतने बहादुर होते हैं कि जाली बंदूक चल जाए तो भाग खड़े होते कि पता नहीं अंदर की। अच्छा क्या चले गए। तो फिर मैं घर आ गया अपना फैसल टाउन अपने घर में। तो सुबह फिर जाके वो अपना सारा होल्ड किया। तो अब वो कहते हैं ना कि वो क्या पंजाबी का मुहावरा, सप नूं सप लड़दे विस किनू चढ़े, या लोहा लोहे को काटता है। अब उस बंदे को भी पता चलेगा कि अगे तो MNA खलोता साडा मकामी MNA, तो ये जो 50 60 70 80 बंदे भेज सकता है, ये तो 500 बंदा इकट्ठा करके तो बिठा देगा, तो असी की करांगे। तो फिर इस तरह दोस्तों वो मुझे प्रेमिसेस वापस मिला। ये थी एक और स्टोरी। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।